हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ज्योति आपके लिए लेके आई हूँ दूसरा पोएम अभी फर्स्ट ईयर का, जो कि जोफ्री चौसर का है। ये पोएम उन दिनों की है जब शायद ग्रामर का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो इसका जो प्यूरिफाई वर्जन है मैं आपको उसे पढ़ाने जा रही हूँ। लेट अस स्टार्ट। देयर आर आल्सो ए नन ऑफ प्रायरस simple. Her way of smiling was and quiet. Her greatest oath was only by Saint Loy, and she was known as Madame Eglantine. And well, she sang the prayer with a fine intoning through her nose, as she was most sweet, and she spoke daintily in French extremely. अगर हम बात करें तो ये नन डू यू नो, ऑल ऑफ यू नो इट्स द मीनिंग ऑफ नन जिसको हम मठाधीशनी कहते हैं। प्रायरस, सी इज प्रायरस, जैसे कि हेड ऑफ हेड ऑफ कॉन्वेंट की हेड होती है, जो हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ एनी डिपार्टमेंट। बट हेयर इज़ द नन जो मठ, पहले शिक्षा का जो केंद्र होता था वो मठ होता था, वहाँ पे मठाधीश और मठाधीशनी होती थी। तो ये डिस्क्रिप्शन उस लेडी है जिसको नन कहते हैं, मठाधीशनी है, उसी का डिस्क्रिप्शन है। मीन टू से टोटली होल द गुड हैबिट्स ऑफ ए लेडी ऑफ ए कॉन्वेंट, हेड ऑफ कॉन्वेंट का डिस्क्रिप्शन है ये। देयर आर आल्सो ए नन ऑफ प्रायरस ऑल ऑफ यू नो इट्स द हेड ऑफ कॉन्वेंट की जो हेड होती है, दैट इज कॉल्ड द प्रायरस, उसी को हम प्रायरस कहते हैं। देयर वाज आल्सो ए नन ऑफ प्रायरस, शी इज ए नन, and a head, she is a nun and a prioress of mean to say head of the convent also. Her way of smiling, mean to say simple, her way of smiling was and quiet, mean to say her way of smiling was very simple and sighful, and she feel quiet, you know, all of you know quiet means, that's meaning quiet, sigh जिसका मतलब होता है शर्मीलापन होता है। Her greatest oath was only by Saint Loy. If we takes the any types of oath, I mean to say her greatest oath was by Saint Loy. Saint Loy जिसको हम, एक संत थे जिनकी लोग कसम लेते थे, कभी जब बहुत बड़ी बात हो जाती तब वो सेंट लॉय की ओथ लेती थी, कसम लेती थी। And she was known as the Madame Eglantine, and she was also an other title that's named Madame Eglantine. Madame Eglantine के नाम से भी उसको जाना जाता था। She she sang the prayer with a fine intoning through her nose. Mean to say when the prayer timing, and as the school in she's her way of praying very sweet and melodious. She sang very well with a fine intoning through her nose, and that's the sound comes from her nose and was most sweet. That's a very melodious, that very attractive song that anyone can be attracted by it. We can say totally that she sings very, she sang very sweetly, बहुत अच्छे से वो गाती थी। That's very attractive, anyone can attract by her. And her spoke daintily in French, mean to say the language of French extremely after the school of Starford at Bow. Starford at Bow के बाद जब, mean to say when she free from the school from the convent, she speak French language also. वो speak French language भी बोलती थी। French is the Paris style, she did not know, but in the and she spoke daintily in French. Daintily, do you know, मतलब she spoke French extremely, अत्यधिक बहुत ज़्यादा वो बोलती तो थी, लेकिन आफ्टर द स्कूल ऑफ स्टैटफोर्ड एट बो के बाद वो फ्रेंच इन द पेरिस स्टाइल शी डिड नॉट नो, बट इन द वे ऑफ टॉकिंग ऑफ पेरिस स्टाइल ऑफ फ्रेंच शी डोंट नो। फ्रेंच की लैंग्वेज तो बोलती थी, लेकिन पेरिस स्टाइल में कैसे बोली जाती थी वो नहीं जानती थी। At table her manner or graceful with all table manner, mean to say at the dinner timing, taking meal at the meal time, she takes meal very mannerful. No morsel means no piece of the food from the lips did not
let fall. When she takes meal, when she takes meal, that's a way of eating, way of taking meal. That's a very elegant and a very graceful withal. Anyone can be takes learn the manner to her by that time or any time. कहने का सेंस है कि वो पूरा मैनरफुल लेडी थी और बहुत ही मैनरफुल वे में वो खाती भी थी, गाती थी, बोलती थी, चलती थी, मतलब हर वे में सी वॉज वेरी लर्नड. नो मॉर्सल, मॉर्सल कहने मतलब कोई भी पीस खाने का जो भी टुकड़ा होता था, हर लिप्स उसके होठ से कभी भी वो गिरता नहीं था नीचे, मतलब कहीं मुंह में लगा नहीं हुआ होता था. मैंने मतलब कि कहने का सेंस है कि खाने का जो वे ऑफ ईटिंग था, वे ऑफ टेकिंग मील था, दैट वॉज वेरी गुड. नॉट डिप हर फिंगर्स इन द सॉस टू डीप, और ना कि टेकिंग द सॉस और एनी टाइप्स ऑफ चटनी जिसको कहते हैं, सॉस कहते हैं. शी कांट डिप हर फिंगर्स, शी डजंट डिप हर फिंगर्स इन डीप सॉस. डीप सॉस मतलब पूरी बहुत उससे डिप करके नहीं खाती थी कि उंगलियां उसमें डाल डाल के खाए, ऐसे नहीं. बट शी कुड कैरी अ मॉर्सल अप एंड कीप, बट शी टेक्स अ बिट ऑफ ए लिटिल ऑफ अ पीस ऑफ फूड एंड टेक्स फ्रॉम हर माउथ. अपने मुंह तक बहुत छोटा सा टुकड़ा लेकर जाती थी और गिरता भी नहीं था जो उसके मुंह से. But she could carry a morsel up and keep, and the smallest drop from falling on her breast. वो पीसेज ऑफ फूड का बहुत छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह तक ले जाती थी और वो स्मॉलेस्ट ड्रॉप फ्रॉम फॉलिंग ऑन हर ब्रेस्ट, थोड़ा सा भी उसके ब्रेस्ट तक गिरता भी नहीं था. For courtliness, she had a special zest, and she full and fine and a full enthusiastic way. She always be in an energetic way में हमेशा रहती थी, हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहती थी, जिसको हम कह सकते हैं. And she would wipe mean to say that's wipe mean to say swipe anything. हर अपर लिप सो क्लीन, एंड उसका जो ऊपरी होठ होता था उसको बहुत अच्छे से क्लीन करती थी. दैट नॉट ए ट्रेस ऑफ ग्रीस वॉज टू बी सीन, जरा सा भी ग्रीसिंग मीन टू से अ लिटिल ऑफ पीस ऑफ एनी सॉस और वर्क would not be fine to that time. Upon the cup